Good morning, everyone. You are welcome in Bharat AI Lab, and we will start today's session. And this week module is MIT App Inventor. So for this, I am sharing my screen. Tell me, my screen is visible? Yes, ma'am. Okay. So for using MIT App Inventor, we have to need a web browser. Okay. So open this platform. In search area of browser, we will type the official website of MIT App Inventor. What is this? You know, type here MIT App Inventor. And you can see here is the official website appinventor.mit.edu. You have to note this website. All you have to note this website in your notebook. Okay, now I am clicking on it to open it. So you can see the first interface, that is home page of this website, and here are some buttons to know about this app. And today we have to create an app, so I am clicking on this button, create apps. Okay. So when I use this app to create our new app, it take permission to connected with any email. Okay. So in your system, if have any Gmail account is login, so you can continue with this account and you can add any other account with the use another account. So I am clicking my Gmail, which is already open in the system. So you can see here that is the surface. It's not the first page, it's the recently using page. जो यू पेज हम जो ऐप हम रिसेंट टाइम यानी कि लास्ट टाइम क्रिएट कर रहे होंगे उसी को ये ओपन करेगा. So I am going to back with the backward button, and this is the interface. So you can see here the list of app which I have created in this platform, and now we will learn a new app. So I am clicking on this plus sign, new project. So first of all, we have to give a name of this app. So today we are going to make a app which is related to speech and sound, voice command से related होगा. Okay. So I am give this name. Talking girl. ठीक है. It said it is already used on and it give notification cannot contain space कि इसके अंदर हम स्पेस को कंटेन नहीं कर सकते जब भी हम कोई भी ऐप का नेम क्रिएट करते हैं यहाँ पर विदाउट गिविंग एनी स्पेस. So it already taken. I change this name. Girl talking. Okay, and click on OK button. So you can see the app name is showing here and the new screen is visible, and you can see the screen of your phone is visible. जो भी आपके फोन की स्क्रीन होती है वो विजिबल होगी और अभी इस पर ये ब्लैंक है. ठीक है. अभी फर्स्ट ऑफ जो हम MIT ऐप पर
MIT ऐप इन्वेंटर पर ऐप क्रिएट करते हैं, देयर आर टू कंडीशंस ऑफ क्रिएटिंग ऐप. First is designing and the second is coding. So you can see here are the two main buttons in right side of top corner, designer and blogs. So we are in the designer screen, and when we click on blogs you can see here the blog buttons. Okay, so I am clicking in designer and you can see here the appearance. Here are the, तो ये एंड्रॉइड है 5+ मटेरियल एंड द फोन स्क्रीन का साइज भी आपको यहाँ पर गिवन है. ठीक है, तो जब भी आप इस पर कोई भी ऐप क्रिएट करते हैं, आप इसको विजुअलाइज करने के लिए अपने फोन से इसको कनेक्ट करते हैं और उसके लिए हमारे फोन में एक ऐप डाउनलोड होना चाहिए. ओके, तो अभी आप देखते हैं कि अभी जो अबाउट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं है, अपीयरेंस में लेफ्ट 1 है, टॉप 1 है, कलर जो डिफॉल्ट में व्हाइट कलर है, कोई बैकग्राउंड कलर नहीं है. अभी हमने यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें इस स्क्रीन का सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए we click on the background color and choose any color according to you. ठीक है, आप बैकग्राउंड पर इमेज भी यूज कर सकते हैं. हियर आर द ऑप्शन बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड इमेज. ठीक है, बिग डिफॉल्ट टेक्स्ट, ये आप देखा अगर कोई टेक्स्ट भी यूज करना चाहें तो. So you can see the color is showing on the full screen. ठीक है, आपने देख लिया कि पूरे स्क्रीन पर जो कलर है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर लिया है तो बैकग्राउंड जो है वो पूरी स्क्रीन के लिए यहाँ पर अवेलेबल हो गया. नाउ वी यूज एन इमेज फॉर व्हाट, बिकॉज हमें एक स्पीकिंग ऐप बनाना है. तो स्पीकिंग ऐप के लिए अब फोन खुद से तो बोलेगे नहीं, यहाँ पर हमें कोई भी एक इमेज यूज करनी है ताकि वो लगे कि जो भी इमेज हमने यूज किया कि वो आप टॉकिंग कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आप कोई भी इमेज जो है वो आप अपनी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बाय यूजिंग इंटरनेट अपने डिवाइस में. So first of all, in the user interface, in the left side, you can see here the button, checkbox. ये जितने भी यूजर इंटरफेस में आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये सभी ऑप्शंस क्या है, यहाँ हम स्क्रीन पर यूज करते हैं. और स्क्रीन पर यूज करने के लिए हमें इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा. सो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस, हम ऐसे ही इमेज को डायरेक्ट नहीं ले सकते, पहले हमें यहाँ यूजर इंटरफेस बनाना होगा इमेज के लिए. So I am clicking this, so you can see on the top left side corner the image interface is showing. And अब क्या करना है कि इस इमेज के आप देखोगे स्क्रीन 1, अभी ये मतलब हम यहाँ पे स्क्रीन भी चेंजेस कर सकते हैं, कितनी भी स्क्रीन बढ़ा सकते हैं. जैसे मोबाइल में हम स्लाइड करते हैं और किसी भी ऐप की नेक्स्ट स्क्रीन आती है सेम, तो यहाँ पर हो गया स्क्रीन 1, इमेज 1, तो आप इमेज 1 का नेम चेंज कर सकते हैं. क्लिक ऑन द रीनेम ऑप्शन. Okay, and old name is image 1 and I want to give is girl. Okay, we use the image of a girl. So you can see the name is converting image 1 to girl. Now we need to upload a file for this image. Okay, so click on this. Here is the option, picture option. Upload file, choose file. ओके, सो आपके डिवाइस में, आपके सिस्टम में जहां पर भी फाइल सेव होगी वहां से आप सर्च कर सकते हैं. आई हैव नॉट सेव एनी फाइल फर्स्ट, सो आई हैव टू डाउनलोड. सो क्लिक ऑन द न्यू टैब, ओपन ए न्यू टैब एंड सर्च कर टॉकिंग इमेज.
लड़कियां तो बात ही ज्यादा करती है, इतनी सारी इमेजेस आ गई। यस, I download this one image. So for downloading, I am clicking on the save as button, save image as button, and it will be download in our desktop. ठीक है, यहाँ पे हम लोकेशन चेक कर लेंगे. Give the name of this image. Okay, so image will be saved. Now come back on your app. Click on the choose file button and go to the desktop and search here your image. So I am typing here girl talking. Yes, talking girl. Okay, and open. और ध्यान रखना कि आपकी फाइल पीएनजी या जेपीजी के फॉर्मेट में हो. ठीक है, सर्च करेंगे तो तब चेक कर लेंगे. Okay, its size very big. We have to control its size. So check the appearance, height. So here are the option of automatic, fill parent, pixels and percent. So we need to understand what is the difference in all four options. So automatic, ये automatic कोई भी अपने according height ले लेगा इसकी. Fill parent यानी कि ये जो आपकी पूरी स्क्रीन है इसके अंदर पूरा fill हो जाएगा ये. ठीक है. And the pixel और परसेंटेज हम अपने अकॉर्डिंग, सपोज हमने पिक्सल लिख दिया. पिक्सल क्या होता है? सो बहुत ही टीनी डॉट्स होते हैं, उनको पिक्सल्स बोलते हैं, जो इमेज के शो करते हैं. विद भी करते हैं, 50 पिक्सल्स पे चेक करते हैं एक बार. ठीक है, तो अगर हमने 50 पिक्सल्स पे चेक किया है तो ये इतना इमेज आपको शो हो गया. बट अगर वी डू इट इन फिल पेरेंट एंड सेम हाइट, so you can see the image will be show in your screen, in full screen is show. ठीक है, अभी देख पा रहे हैं आप. और जो आपने बैकग्राउंड कलर यूज किया था वो सेम ऐसे ही कलर है आपका. अभी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है. ठीक है, तो हम हाइट जो है वो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ये 80% ले देते हैं हाइट. ठीक है, अब ये नीचे का जो एरिया है वो हमारा बच गया. ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन यूज करेंगे. इस ऐप को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन या अदर जो भी हमें नीड होगी वो बटन हम यूज करेंगे. एंड वी कैन गिव द टेक्स्ट, वी कैन गिव द टाइटल ऑफ दिस ऐप. इफ यू वांट टू गिव द टाइटल, टेक अ टेक्स्ट बॉक्स, क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइप हेयर. टाइप तो यहाँ नहीं होगा, टाइप हमें इसके अंदर करना होगा टेक्स्ट बॉक्स में. यहाँ पर हमें टाइप करना होगा. तो ऐप का क्या नेम है? गर्ल टॉकिंग. ऐप सिलेक्टर यूज करेंगे या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं टॉकिंग विद मी. ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये आ गया, आपका चेंज हो गया. अब आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं. यू कैन चेंज द कलर.
टेक्स्ट का अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, लेफ्ट में या सेंटर कर सकते हैं। एंड द बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड फॉन्ट बोल्ड, बोल्ड कर लिया। इटैलिक नहीं, फॉन्ट साइज, I'm share again my screen. Screen is visible to you? Yes, ma'am. Okay, okay. Any query? यहाँ तक इमेज डाउनलोड करने, बटन्स यूज करने में कोई क्वेरी अभी तक? So we are changes the properties of text box. तो font size तो increase हो गया, but text box का size भी थोड़ा increase करना होगा हमें। I think we need to select the text. ठीक है, और टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर भी we can change. And here is the options of height and width. So height is good, we need to okay, now it's looking good. Talking with me, and here is the girl image. So students, the designing I think of this app completed. You can modify according to you. Now the most important option is what, how we use the option of speaking. So here in the media block, you can see some components are here. So we use this text to speech. Okay, here are the some more sound decoded, speech recognizer, text to speech, translate, video player. So here is the text to speech. Okay, so we have to drag it, and you can see it's a non-visible component. It's not showing on your ऐप स्क्रीन। आपकी जो ऐप स्क्रीन है वो यहाँ पर शो नहीं होगा, बट ये वर्क करेगा। तो ये ऐप के नीचे यानी कि आप इसको कोड में यूज करेंगे, और ये कंपोनेंट ऑलरेडी ऐप में जो है वो इनविजिबल रहेगा। ओके, तो सम कंपोनेंट्स ऑफ मीडिया आर नॉन विजिबल कंपोनेंट। जैसे आपके यूजर इंटरफेस के, ये तो क्या होंगे, ये सब जो है शो होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यूजर इंटरफेस के लिए, जो यूजर है वो उसका इंटरफेस उसके सामने होंगे ये सारी चीजें। बट मीडिया के अंदर क्या होगा कि वो उनको यूज तो कर पा रहे हैं, लेकिन वो नॉन विजिबल रहेंगे। सो आई हैव यूज दिस option non visible component, and we take a button of user interface, type here, and set the properties of it. First of all, we need to change its name. बटन 1, ठीक है, तो we give its name, click on the button, and here is the text. Change the name of it, start button. Okay, and height and width, it's okay, height and width it's okay, but we need to align it in center. So for align it,
इमेज कोई नहीं है, यस टेक्स्ट सेंटर अलाइन सेंटर में। ओके, सेंटर का मीनिंग कि ये बटन के अंदर टेक्स्ट सेंटर में है, बट वी हैव टू सेट दिस बटन इन सेंटर ऑफ स्क्रीन। सो फॉर दिस here is the option in layout, below the user interface here is the option of layout. So first of all we have to take the horizontal arrangement. हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट करना रखना है हमें, सेंटर में रखना है। डिलीट, डिलीट, ठीक है। स्टार्ट बटन है, पहले यहीं से चेक करते हैं तो ना, तो यहीं से एब्सोल्यूट अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, फिफ्टी पिक्सल रखेंगे, नहीं 50 कम हो गया, 100 रखेंगे इसको। First of all, we need to take horizontal arrangement, then take the button. If I take the button, yes. पहले horizontal arrangement, then take the button. So keep in horizontal arrangement in center. Something is missing. Okay, we do it later. We will do it later. First of all, we use this start button. So change the appearance of this button. Here are the shape option. We can change it in rounded shape. Okay. Text alignment, center, behavior, all good. Height with good. Font type, face good. Okay, all thing is good. So we have used this button. Okay. बाद में देखेंगे, फिर गड़बड़ हो जाएगी। So now we have already do this code. We have used image and we have used the button. Now we have to code the button for start the app. Okay. So for this, for going the code, we have to click on the blocks button. So when we click on the blocks button, you can see here are the option of components which we have used in screen one. We have used only one screen. So screen one में text box one है, girl है, button one है and text to speech component है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे बटन वन, बटन वन हमारा क्या है, स्टार्ट बटन। ठीक है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो बटन से रिलेटेड जितने भी आपके ब्लॉक्स होंगे, कोड होंगे, वो आपको विजिबल हो जाएंगे स्क्रीन पर।
and first of all we have to use the first option when button 1 is click, कि जैसे ही बटन 1 क्लिक होता है तो क्या चेंजेस होगा, क्या इंस्ट्रक्शंस इसको दी जाएंगी। ठीक है, जैसे ही बटन इंक्रीज होगा, okay, when we click on the button 1 is start button, so what is the changes, जैसे ही बटन 1 हम स्टार्ट करेंगे तो क्या इंटरफेस होना चाहिए, क्या चेंजेस आने चाहिए, वो हमें यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो हैव यू एनी आइडिया कि बटन 1 स्टार्ट होने पर क्या करना चाहिए। कैन एनीवन टेल। बताइए, यू आर नॉट द न्यू स्टूडेंट। And this will translate. We have used the button 1, then what we have to click। अरे भाई, हमें स्पीच वाले पे क्लिक करना है ना, स्पीच रिकॉग्नाइजर इज टेक्स्ट टू स्पीच। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी Yes. हैव टू गो बैक, क्योंकि स्पीच रिकॉग्नाइजर भी हमें यूज करना है विच वी हैव नॉट यूज। सो क्लिक ऑन द मीडिया ऑप्शन एंड नाउ वी हैव टू टेक speech recognizer also, and this is also a non visible component। okay, you can see here are the two components, and now go back to block and now click on the speech recognizer। so जैसे ही बटन पर क्लिक करेंगे तो कॉल स्पीक रिकॉग्नाइजर वह बोलेगा कि कॉल द स्पीक, जो भी स्पीक करनी है वो यहाँ पर, एंड देन वी ऐड दिस कोड इन बटन 1। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि जैसे ही स्पीच रिकॉग्नाइजर स्टार्ट होगा, बटन 1 से स्टार्ट हो गया, क्लिक अगेन द स्पीच रिकॉग्नाइजर एंड टेक दिस स्टेप, कि अगर ये स्पीच रिकॉग्नाइजर स्टार्ट हो गया तो देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, क्या रिजल्ट होगा, क्या पार्शियल होगा। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब बताइए, टेक्स्ट देना पड़ेगा उसको, कुछ टेक्स्ट लिखना पड़ेगा जिसको वो स्पीच कर सके, कुछ उसको इंस्ट्रक्शंस देनी होंगी। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच एंड क्लिक ऑन दिस स्पीक और मैसेज। ठीक है, वी यूज दिस कोड्स। First of all, we take the button, then we add the code speech recognizer which have used in our app, and if we add this speech recognizer, तो what is the next step, to text to speech, या तो हमें कुछ टेक्स्ट देना होगा या फिर हमें उसको कोई मैसेज टाइप करना होगा। ठीक है, एंड हेयर आर द ऑप्शंस, रिजल्ट, कि रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, सो टेक दिस रिजल्ट एंड ऐड इन दिस टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन, कि जैसे ही टेक्स्ट टू स्पीच होगा तो जो नेक्स्ट रिजल्ट वो क्या आएगा यहाँ पर। तो टेक दिस ऑप्शन हेयर, यहाँ से हमने इसको ऑप्शन को ले लिया। ओके, क्लिक एनीवेयर टू remove the pointing, so you can understand these code, बटन, स्पीच एंड स्पीच रिकॉग्नाइजर। ठीक है, इमेज का हमने कोई भी, क्योंकि इमेज तो परमानेंट आपकी स्क्रीन पर रहनी ही है। ठीक है, इमेज का कोई नहीं लिया हमने कोड।
अब इस ऐप को क्रिएट करने के बाद वी हैव टू चेक दिस कोड कि क्या ये वर्क प्रॉपर कर रहा है। तो फॉर चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, आई ऑलरेडी सेड टू यू कि वी हैव डाउनलोड एन ऐप इन आवर फोन, कि हमें अपने फोन में एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए गो बैक इन डिजाइनर, ओके, एंड you can see here is the options to build an Android APK and here is the option of connect. So AI companion, ठीक है, ये दो ऑप्शन है। तो AI companion पर हम क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द